پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ جمعرات 25 جون کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 طاقتور زلزلوں کے بعد ایمرجنسی نافذ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق گزشتہ رات آنے والا زلزلہ سن 1900 کے بعد وینزویلا میں ریکارڈ کیا جانے والا سب سے شدید زلزلہ تھا، جبکہ حکام کا خدشہ ہے کہ ہزاروں افراد اس آفت سے متاثر ہوئے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہو سکتی ہے۔ Aquí estoy a 20 metros del edificio, empieza a temblar y paro el carro. Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے راولہ کوٹ اور میر پور سے متعلق بیان نے ایک نئے تنازع کو جنم دے دیا ہے اور اس پر پارلیمان سمیت مختلف سیاسی حلقوں میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے۔ کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں بنتا، کشمیری قربانیوں سے بنتا ہے، ہجرت سے بنتا ہے۔ جن کو گھروں میں بیٹھ کے آزادی مل گئی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی آزادی کی جو ہے وہ جو ہے قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں جان سکیں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 2 ہفتوں سے جاری احتجاج کے باعث کئی علاقوں میں خوراک اور ضروری اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ احتجاج جو ہیں حکومت کا اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں اس وقت غریب بہت جو ہے نا نقصان میں ہے، غریب کے لیے بہت مشکل بنی ہوئی ہے۔ آٹے کا بحران ہے، اشیاء فروش کا بحران ہے بہت زیادہ، پہلے تو کوئی اشیاء مل ہی نہیں رہی، دکانیں بند ہیں۔ ادھر دلی کے تاریخی میدان جنتر منتر میں شدید گرمی کے باوجود سینکڑوں نوجوان سراپائے احتجاج۔ موجودہ تعلیمی نظام سے نالا یہ نوجوان اپنے مستقبل سے متعلق کن خدشات کا شکار ہیں اور اپنے احتجاج سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ کا پورا کریئر ایک ہی ایگزام پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور وہی ایگزام کی ایسی نیوز آ رہی ہے کہ لیک ہو گیا یہ وہ، تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیسے ہوگی؟ تو وی آر جسٹ کوسچننگ اکاؤنٹیبلٹی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جو نے پڑھائی کری ہوگی اس کو پتا ہوگا کہ بچہ کس مینٹل پریشر سے پورے اس میں گزر رہا ہے۔ 14 بچوں نے سوسائڈ کرا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے یہ بتاؤ نا۔ 14 بچوں نے جو سوسائڈ کرا ہے اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ صرف 2 ہفتوں کے اندر ایلون مسک دنیا کے پہلے ٹریلینئر بننے کی دوڑ میں پیچھے کیوں چلے گئے اور ان کی دولت میں اچانک اتنی بڑی کمی کیسے آئی؟ Elon Musk is no longer a trillionaire. A sink in SpaceX stocks by 31% yesterday. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سرگودا سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ منتہا زہرا کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کر دی گئی، جبکہ اس مقدمے کا مرکزی ملزم ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ جو فاک درندہ اور خبیث انسان تھا جس نے یہ 8 بلاک والا واقعہ کیا تھا، اس کے لیے یہاں پہ اس اہل علاقہ نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہماری جگہ جو ہے اس جیسے درندوں کے لیے نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران سے متعلق کشیدگی میں کمی کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں دوبارہ جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس آ گئی ہیں۔ ہزاروں سال قبل وادی سندھ کی تہذیب کے عظیم شہر موہنجو داڑو سے دریافت ہونے والی مشہور ڈانسنگ گرل آخر دلی کیسے پہنچی اور اس کے سفر کے پیچھے کون سی تاریخی کہانی چھپی ہوئی ہے؟ سندھ وادی کی تہذیب کی 4,500 سال پرانی یہ مورتی حال میں اس وقت زیر بحث آئی جب انڈیا کے اسکول بورڈ نے نصابی کتاب میں ڈانسنگ گرل کی تصویر میں اس کے نیوڈ یا اریاں جسم کو ڈارک کلر سے ڈھک دیا۔ اور آج کے سیربین میں ہم آپ کو لے چلیں گے دریائے چناب کے کنارے واقع ایک ایسی پوشیدہ وادی میں جو قدرتی خزانوں، نایاب جڑی بوٹیوں اور دلکش مناظر سے مالا مال ہے، جہاں فطرت ہر قدم پر مسکراتی محسوس ہوتی ہے۔ وادی چناب، اس وادی سے بہتا ہے دریائے چناب جو ہماچل پردیش میں 2 دریا چدرا اور بگا مل کر اس وادی سے رواں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جانیں گے برطانیہ کی تاریخ کے ایک ایسے پر اسرار معمہ کے بارے میں جس نے 1 صدی سے زیادہ عرصے سے لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔
वेनेजुएला में आने वाले 2 ताकतवर जल्जलों के नतीजे में कम से कम 32 अफराद हलाक और तकरीबन 700 जख्मी हो गए हैं। ये आदादोशुमार वेनेजुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने जारी किए हैं। ताहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। At this moment of great sensitivity for our people and for those who unfortunately have suffered the loss of a family member, we extend our immediate condolences. अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS ने ज़लज़ले के फौरन बाद बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान की पेशगोई करते हुए कहा था कि दूसरे और ज्यादा ताकतवर ज़लज़ले के बाद 44% इम्कान है कि हलाकतों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर सकती है, जबकि 1 लाख से ज्यादा अफराद के हलाक होने का इम्कान भी तकरीबन 30% है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में कहा कि वेनेजुएला में आने वाले ज़लज़लों की शिद्दत गैर मामूली थी और इब्तिदाई इतलात के मुताबिक बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इमदाद फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और उन्होंने हुकूमती इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत भी जारी की हैं। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका अपने नए और अजीम दोस्त के साथ खड़ा रहेगा। दूसरी जानब अमेरिकी नायब वजीर खारजा बराए गैर मुल्की इमदाद जेरेमी लियोन ने ऐलान किया है कि अमेरिका वेनेजुएला के लिए तलाश और बचाव की टीमें तिब्बी सहूलियात और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान रवाना करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी तस्दीक की है कि इमदादी टीमें फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों की जानिब रवाना की जा रही हैं। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के लवाहिकीन, जख्मियों और इमदादी कारकुनों से इजहार हमदर्दी भी किया है। वेनेजुएला की मदद के लिए लातीनी अमेरिका के कई मुमालिक भी मुतहरिक हो गए हैं। एल सल्वाडोर के सदर नायब बोकेले के मुताबिक उनके मुल्क ने 300 इमदादी एहलकारों और 50 टन इमदादी सामान को दारुल-हुकूमत रवाना करने के लिए तैयार कर लिया है। एक्वाडोर के सदर डेनियल नोबोआ ने भी फौरी इमदाद भेजने का ऐलान किया है, जबकि ब्राजील के सदर लोइजा नासियो लादा सिल्वा ने कहा है कि उनका मुल्क जायजा ले रहा है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क की किस तरह मदद कर सकता है। मेक्सिको ने भी वेनेजुएला के साथ मुकम्मल यकजहती और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। माहिरीन के मुताबिक वेनेजुएला एक ऐसे जुग्राफियाई खित्ते में वाक़ है जहां ज़लज़ले निस्बतन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ कैरेबियन प्लेट और जनूबी अमरीकी प्लेट्स आपस में मिलती हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक आज आने वाला दूसरा और ज्यादा ताकतवर ज़लज़ला इन प्लेट्स की सरहद के करीब सतही स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग के बाइस आया, जिसमें जमीन की तहों के दरमियान अचानक और तेज रफ्तार हरकत ज़लज़ले को जन्म देती है। USGS का कहना है कि अगरचे ज़लज़लों को अमूमन नक्शों पर एक नुक्ते की सूरत में जाहिर किया जाता है, लेकिन इस शिद्दत के ज़लज़ले दर हकीकत ज़ेरे ज़मीन एक बड़े फॉल्ट के हिस्से में होने वाले फिसलाव और पेचीदा टूट फूट के अमल का नतीजा होते हैं। इदारे ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में मजीद आफ्टर शॉक्स का खतरा भी मौजूद है और इनमें से बास झटके शदीद नोयत के भी हो सकते हैं, जिसके बाइस इमदादी कार्रवाइयों में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। USGS के मुताबिक गुज़िश्ता रात वेनेजुएला में आने वाले ज़लज़लों में से एक सन 1900 के बाद मुल्क में आने वाला सबसे ताकतवर ज़लज़ला था। गुज़िश्ता रात आने वाले पहले ज़लज़ले की शिद्दत USGS के मुताबिक 7.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसके 1 मिनट से भी कम वक्त में आने वाले दूसरे ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 थी। इदारे के ज़लज़लों के रिकॉर्ड के मुताबिक 29 अक्टूबर 1900 को वेनेजुएला के साहिल के करीब 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसे सान नारसेसो ज़लज़ला कहा जाता है। Aquí estoy a 20 metros del edificio, empieza a temblar y paro el carro y se cayó el edificio donde estaba el semáforo. Yo estaba parado ahí, Wow. Claro, me agaché. Está asustada, hijo. Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos
nuestras condolencias inmediatas. Está temblando. Mira cómo está el techo. Todo quedó destrozado. Mira este desastre. Este es Maiquetía, en las ascensores donde están. Mira el desastre que hay. Acabado totalmente. Observen después el terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá. पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अजला रावला कोट और मीरपुर के अवाम से मुतल्लक दिए गए मुतनाज़ा बयान पर सियासी और अवामी हलकों में शदीद रद्दअमल सामने आया है। ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि वो रावला कोट और मीरपुर के लोगों को लंबा चौड़ा कश्मीरी नहीं समझते क्योंकि वो पोठोहारी ज़ुबान बोलते हैं। ये बयान सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बनने के बाद कौमी असम्बली तक पहुंच गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल उठाया कि ऐसा बयान देने वाला वफाकी वजीर अब तक काबीना में क्यों मौजूद है। उनका कहना था कि एक वफाकी वजीर की जानिब से ऐसे अल्फाज नाकाबिल कबूल हैं और इससे कश्मीर में पहले से मौजूद कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी ख्वाजा आसिफ के बयान को नामुनासिब करार देते हुए कश्मीरी अवाम के जज्बात मुजरू होने पर तशवीश का इजहार किया है। रावला कोट को तो मैं कश्मीरी नहीं समझता या कोई कमतर कश्मीरी समझता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी दिल आज़ारी है। मेरी सारी जमात की दिल आज़ारी है। पाकिस्तान में बसने वाले हर शख्स की जो कश्मीर से मोहब्बत रखता है, जो कायदे आज़म के इस फरमान पर यकीन रखता है कि कश्मीर हमारी शाह रग है, उसका दिल जो है वो बहुत रंजीदा हुआ। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि कश्मीरी शनाख्त सिर्फ पैदाइशी सर्टिफिकेट से नहीं बल्कि जिद्दोजहद और कुर्बानियों से जुड़ी हुई है। उनके मुताबिक उनके रिमार्क्स को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया और पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान रिश्ता नाकाबिले जुदा है। कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है, हिजरत से बनता है। जिनको घरों में बैठ के आज़ादी मिल गई हुई है, वो कभी भी आज़ादी की जो है वो जो है कदर कीमत जो है वो नहीं जान सकेंगे। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि ये मैं एक आर्गूमेंट दिया है मैंने कि बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कश्मीरी कोई नहीं बनता, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पाकिस्तानी भी कोई नहीं बनता। उसको भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का जो है ना वो एक ना टूटने वाला रिश्ता जो है ना वो कायम करना पड़ता है। अगर पाकिस्तानी शरीयत मेरे पास है, खुदा न खास्ता अगर मैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करूं तो मैं फिर पाकिस्तानी नहीं हूं। पाकिस्तानी पासपोर्ट या आईडी कार्ड जो है वो मुझे ये हक नहीं देता कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करूं या कोई कश्मीरी के खिलाफ बात करे, उनकी स्ट्रगल के खिलाफ बात करे, कुर्बानियों से गुरेज करें, घर बैठ के आज़ादी लें और उसके बाद जो है हकूक भी और पाकिस्तान के खिलाफ जाने तो हमने दी हैं, कश्मीरियों ने भी दी हैं, लेकिन आज भी कंट्रोल लाइन के ऊपर सारे पाकिस्तान के चारों सूबों के बल्ती और गिलगिती और कश्मीरी वहां पे पहरा दे रहे हैं उनकी आज़ादी के लिए। ये तनाज़ा ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की 12 मखसूस नशिस्तों के मामले पर सियासी कशीदगी पहले ही उरूज पर है और मुख्तलिफ हल्के मुज़ाकरात के ज़रिए मसले के हल पर जोर दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से एहतजाज करने वाली कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात क्या हैं।
इसकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए किन शराइत को ज़रूरी करार दिया जा रहा है। शुजात सुलहरिया की इस रिपोर्ट में जानिए कि कमेटी का मौक़िफ़ क्या है, अहम मुतालबात क्या हैं और मुमकिना मुज़ाकराती रास्ते की तफसीलात क्या हैं। तहरीक है पिछले 3 साल से ये जारी और सारी है। इस तहरीक के निकात क्या है? ये लोग तालीम मांगते, इलाज मांगते, ये इंसाफ की सहूलतें मांगते और इस तरह से लेकर जो महाजरीन की नशिस्तें थी जो यहाँ के हक़ हुक्मरानी को मुतासर करती थी, जो हक़ हुक्मरानी को कॉम्प्रोमाइज करती थी, उसके ऊपर ये तहरीक थी। एक्शन कमेटी के मेन मुतालबात हुक्मरानों की मुराद का खात्मा है, कश्मीर का एयरपोर्ट है, 12 महाजरीन नशिस्तें हैं और इसी तरह के दीगर हमारे मुतालबात हैं। 38 मुतालबात हैं जिनके ऊपर हुकूमत ने हमारे साथ 4 मरतबा माहिदा किया है इन मुतालबात की मंजूरी के लिए और वादे किए हैं जो अभी तक ताहाल पूरे नहीं हो सकते। रावला कोट शहर के चारों अतराफ जो है वो इस वक्त हमारे 6 धरने जो है वो लगे हुए हैं 10 जून से, जो इस वक्त तक जारी और सारी हैं और ये हमारी एक हिकमत अमली है। हमारा जो लॉन्ग मार्च था वो बरकरार है, वो किसी वक्त भी हम जो है वो फैसला कर सकते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ने का। तहरीक को पूरा अमल रखते हुए जहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं तो अगर मुज़ाकरात पूरे नहीं होंगे तो इंशाअल्लाह असेंबली के बाहर के हमारी कॉल आ जाएंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात पहले से ही तस्लीम किए जा चुके हैं, जबकि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों का मामला एहतजाज की बजाय कानूनी और आइनी तरीक़ाकार के ज़रिए ही हल हो सकता है। ताहम कल अदम करार दी गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुज़ाकरात के लिए अपनी शराइत पेश की हैं। हमने मुज़ाकरात के लिए कुछ शराइत रखी हैं कि सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है वो आर्डर जो है वो मनसूख किया जाए, गैर रियासी जो फोर्सेज हैं उनको बैक किया जाए, कर्फ्यू जो शहरों में लगे हुए हैं उन कर्फ्यू का जो है वो खात्मा किया जाए। इसी तरह सैकड़ों जो है वो नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी हमें खबर तक नहीं है कि वो कहाँ हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दफ़ा और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कोई तकरीबन 6 माह का हमारा एक डायलॉग का प्रोसेस चला। हम वही लोग हैं, वही आम शहरी हैं जिनके साथ हुकूमत ने मुज़ाकरात भी किए। कौम ये लोग ओवरसीज़ कश्मीरी पूछना चाहते हैं कि इन 2 दिनों के अंदर आखिर क्या हुआ कि हम 5 जून को जो है वो कलअदम करार दे दिए गए। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कलअदम करार दी गई तंजीम जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की वजह से खित्ते के ज़्यादातर हिस्सों में कारोबारी सरगर्मियाँ भी बंद हैं। ऐसी इतलात भी हैं कि बाहर से खुराक और पेट्रोल लाने वाली गाड़ियों को रियासती हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। इसकी वजह से मुकामी लोगों को रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया की किल्लत का सामना है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर लोग अपनी ज़ाती गाड़ियों में महदूद सामान ले जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी रोका जा रहा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के आवाम और मुजाहिरीन दोनों की जानिब से हुकूमत के इस इक़दाम की मज़म्मत की जा रही है, जबकि हुकाम का कहना है कि पेट्रोल की तरसील एक मनसूबा बंदी के तहत रोकी गई है और अशिया खुर्दोनोश के रोके जाने से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा गया है कि रावला कोट या आज़ाद पत्तन में पुलिस ने किसी भी ऐसी गाड़ी को नहीं रोका जिसमें खाने पीने का सामान लादा गया हो। हकीकत क्या है जानते हैं नसीर चौधरी से। ना बेसिकली गवर्नमेंट ने हमें इस पे करके होटल्स पे पुलिस को भेज के जो है होटल्स हमारे खाली करवाए और सियाहों को यहाँ से निकाला गया है। गवर्नमेंट से दोबारा से अपील करूँगा और अदारों से ये कहूँगा कि कम से कम नीलम वैली की सियाहत को आप फुल फॉर बहाल करें और यहाँ पे सियाहों को आने का मौका दिया जाए ताकि लोकल लोगों का यहाँ का रोज़गार बहाल हो सके। रास्ते खोलन अस वास्ते राशन पानी आवे, गरीब लोग आसी ना वक्ता को ध्यान लग दिया, वक्ता लग दी नहीं ना। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कलअदम करार दी गई तंजीम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हड़ताल कर रखी है, जिसे 2 हफ्तों से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुख्तलिफ इलाकों में धरनों और हड़ताल की कॉल, जबकि इलाके में सिक्योरिटी के लिए हुकूमती इक़दामात की वजह से खित्ते के ज़्यादातर हिस्सों में कारोबारी सरगर्मियाँ बंद हैं। रास्तों की बंदिश की वजह से इलाके में खुराक और अशिया खुर्दोनोश की किल्लत पैदा हो गई है। एहतजाज जो है हुकूमत का और जॉइंट एक्शन कमेटी का मसला है, लेकिन उसमें इस वक्त गरीब बहुत जो है ना नुकसान में है। गरीब के लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है। आटे का बुरान है, एशिया खुर्दोनोश का बुरान है बहुत ज़्यादा। पहले तो कोई एशिया मिल ही नहीं रही, दुकानें बंद, तो अगर कोई मिल भी रहा है तो वो भी महंगा मिल रहा है बहुत ज़्यादा, पहले रेट से भी ज़्यादा थोड़ा महंगा हो गया। और पेट्रोल का भी यही सिचुएशन है, बड़ी मुश्किल से मिलता ही नहीं है। और आटे का तो बुरान आपको पता है बहुत ज़्यादा है। 15 दिन हुए पैसे जमा किए, आटा नहीं मिल रहे,
अस वास्ते मुश्किलात है काफ़ी सारी जनाब। तो आटा गरीबों लोगों को जो कोई आया मिलता है, बाकी लोग यहीं रहने जनाब, नहीं मिलता कुछ भी जनाब। दुकानें तो गए जनाब, दुगना गए चावल जो दुगना ला कर देने जनाब, बस लोग के। दुकानदारों और रिहायशियों का दावा है कि बाहर से खुराक और पेट्रोल लाने वाली गाड़ियों को रियासती हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, और अगर लोग अपनी ज़ाती गाड़ियों में महदूद सामान ले जाने की कोशिश करते हैं तो इन्हें भी रोका जा रहा है। आया दुकानें तो खोली हैं, लेकिन हमारे पास स्टॉक नहीं है। मैदा, घी, चीनी, रास्ते ही बंद है, पेट्रोल की बंदिश है, रस्तों की बंदिश है, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना है। जो हमारे पास सामान अवेलेबल है वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये कि स्टॉक पूरा नहीं है हमारे पास। हमारा सामान नहीं आ रहा, हम जहाज के गाड़ी से सामान ला रहे हैं, इस वजह से दुकान हाली थोड़ी टाइम दुकान खोल लेते हैं। ताहम मकामी इंतज़ामिया ने खुराक की फराहमी मुअत्तल करने या शहरियों से खुराक जब्त करने के इल्ज़ामात की तरदीद की है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की पुलिस के सरबराह कैप्टन रिटायर्ड मलिक रियाकत का कहना है कि रावलाकोट या आज़ाद पतन पर पुलिस ने किसी भी ऐसी गाड़ी को नहीं रोका जिसमें खाने पीने का सामान लादा गया हो। नीलम वैली बेसिकली ये एक टूरिज़म हब है। यहाँ पे सियाहत का, आज़ाद कश्मीर का ये एक खूबसूरत हिस्सा है। सियाहत का बहुत बड़ा यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, और ये हालिया जो स्ट्राइक हुई तो मुतालबात पे, तो इसमें सियाहत को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है। हम चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को बहाल किया जाए। इसमें करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो चुका है। इस वक्त जो नीलम वैली का मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे गेस्ट हाउसेस की तादाद जो है वो हज़ारों में है, और जो इसके लोग काम करते हैं वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार हमारे पास रजिस्टर्ड लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो इस वक्त इस सीजनल टाइम में डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी सैलरीज, तनख्वाहें, उनके चूल्हे बुझ चुके हैं। तो गवर्नमेंट को इस पे फौरी रिएक्ट करना चाहिए और सियाहत को फौरी तौर पे बहाल करना चाहिए ताकि इन लोगों के चूल्हे दोबारा से जल सकें। तो मेरी हुकूमत से और जॉइंट एक्शन कमेटी से इनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप अपने मामलात बैठ के किसी तरह से इनको हल करें ताकि गरीब बेचारा बच सके, वरना गरीब के लिए बहुत मुश्किल बनी। एक तंजिया लफ्ज़, एक सोशल मीडिया मीम और चंद नाराज नौजवान, लेकिन देखते ही देखते यही रद्द-ए-अमल एक मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक में बदल गया। दिल्ली के तारीखी मैदान जंतर मंतर पर सैकड़ों नौजवान 5 रोज से शदीद गर्मी और हुकूमती दबाव के बावजूद अपने मुतालबात के हक में डटे हुए हैं। खुद को काकरोच जनता पार्टी कहने वाले ये नौजवान कहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरे तबके की बेबसी की अलामत बना दिया गया है। ये तहरीक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक मुतनाज़ा बयान के रद्द अमल में शुरू हुई, जिसमें मुबैना तौर पर बेरोजगार नौजवानों को काकरोच से तशबीह दी गई थी। अब ये नौजवान नीट इम्तिहान के पर्चे लीक होने की शफाफ तहकीकात, मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे, इजहार राय की आज़ादी और मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी के मसले के हल के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर एक डिजिटल मीम से जन्म लेने वाली ये तहरीक इतनी बड़ी एहतजाजी मुहिम में कैसे तब्दील हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा ये नौजवान मौजूदा तालीमी और रोजगार के निज़ाम से इस कदर नाला क्यों हैं और वो अपने एहतजाज के जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, देखिए हमारी इस खसूसी रिपोर्ट में। जब आपका पूरा करियर एक ही एग्जाम पे डिपेंडेंट है और वही एग्जाम की ऐसी न्यूज आ रही है कि लीक हो गया ये वो, तो मैं पूछना चाहूंगी कि कैसे होगी। तो वी आर जस्ट क्वेश्चनिंग अकाउंटेबिलिटी कि ये सब क्यों हो रहा है। जो इतने पढ़ाई करी होगी इसको पता होगा कि बच्चा किस मेंटल प्रेशर से पूरे इसमें गुजर रहा है। 14 बच्चों ने सुसाइड करा है, उसका जिम्मेदार कौन है ये बताओ ना। 14 बच्चों ने जो सुसाइड करा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं अगले साल की अगर प्रिपरेशन करूं तो मैं किस बेसिस पे करूं कि पेपर लीक नहीं होगा। मैं 3 दिन से तब से आया हूँ, मैं अपने खुद के बच्चे के इसके लिए नहीं रुका, क्योंकि मैंने देखा हमारे लिए अगर ये लड़ रहे हैं तो इनके साथ हमें रहना चाहिए। हमारे बच्चे भी कल इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, कल कैसे करें क्या भरोसा है। चाहते हैं कि जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए, हर हाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी। यहाँ बच्चे सुसाइड कर गए उसी सिस्टम की वजह से, और उसके बाद उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है, केवल फोटोबाजी होती है। यह दिखाने वाली बात नहीं, एक्शन में आना चाहिए, ग्राउंड पे दिखना चाहिए ये चीज। कोई बात नहीं, हम कम खा लेंगे, एक दिन रोटी कम खा लेंगे, लेकिन इस जगह पर आना, इन बच्चों का साथ देना, और क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी हायर जुडिशरी में अपेयर होते हैं, तो उधर भी इतनी धांधलियां हैं, तो उनके ऊपर भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए सरकार को। इसके पर्पस के लिए मैं यहाँ आया हूँ बेसिकली। लेकिन इस सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और वो किस तरह इस सूरत हाल से निपट रही है, जानते हैं दिल्ली में मौजूद शकील अख्तर से। देखिए, हुकूमत काफ़ी मोहतात है क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और
हुकूमत को ये बिल्कुल मालूम है कि पेपर लीक के मामले पर पूरे मुल्क के नौजवानों और उनके वालिदैन में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है, तो इसलिए उन्होंने अभी तक कोई जबरी इक़दाम नहीं इनके ख़िलाफ़ उठाया है और इन्हें इजाज़त दे रही है। अभी तक ये एहतजाज चल रहा है और उनका यही कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने तौर पर जो भी एग्ज़ाम का जो पेपर वगैरह लीक होते हैं उसको फुल प्रूफ बनाया जाए और अपने तौर पर वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मोहतात हैं कि कोई कदम इनके ख़िलाफ़ अभी नहीं उठा रहे हैं। और अब दीगर अहम आलमी खबरों पर एक नज़र डाल रहे हैं गजनफर हैदर। मकबूजा क्राइमिया में सेवास्टोपोल का शहर तवानाई की तनसीबात पर यूक्रेनी हमलों के बाद तारीख में डूब चुका है। मॉस्को के मुकर्रर करदा गवर्नर ने लोगों से अपील की है कि वो परेशान ना हो। उधर रूसी खत्ते पर यूक्रेनी हमलों में 2 अफराद हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन पर रूसी हमलों में मुबैना तौर पर 6 अफराद हलाक हो गए हैं। वेस्टर्न यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में है। फ्रांस सबसे ज़्यादा मुतासर है, जहाँ मंगल को दर्जा हरारत जून के माह की रिकॉर्ड सतह तक बढ़ गया था। मुल्क के साउथ वेस्ट में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। आज भी दर्जा हरारत की ये सतह कायम रहने का इम्कान है। यूरोप के कई मुल्कों में हाई अलर्ट जारी किए गए हैं, जबकि बाज़ जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने मुल्की बहरिया को एटमी हथियारों से लेस करने का ऐलान किया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने ये ऐलान बहरिया में एक नए जहाज़ के इफ्तिताह पर किया। साथ ही उन्होंने नेवी की तौसी के मंसूबों का ऐलान भी किया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में मकड़ी की एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है, जो एक मखसूस चूंटी ही का शिकार करती है। मौकिकीन की एक बैन अक़वामी टीम ने मालूम किया है कि रात को निकलने वाली ये रेन फॉरेस्ट मकड़ी स्प्रिंग कासा फंदा एक ख़ास किस्म की चूंटी पर फेंकती है और एक वक्त में सिर्फ एक ही शिकार करती है। इस मकड़ी को कदीम रोमी हथियार बलिस्टा की निस्बत से बलिस्टा स्पाइडर का नाम दिया गया है, क्योंकि वह हथियार स्प्रिंग की मदद से तीर या पत्थर दागने के लिए इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली 8 साला मुंतहा जहरा की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की जानिब से इस राय का इजहार किया गया है कि बच्ची की हलाकत गला घुटने से हुई, जबकि बज़ाहिर उन पर जिनसी हमला भी किया गया। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्ची का रैप हुआ या नहीं, इस बारे में हतमी राय पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स आने के बाद ही दी जा सकती है। डीपीओ सरगोदा सुहेब अशरफ के मुताबिक बच्ची का पोस्टमार्टम हो चुका और DNA सैंपल्स पंजाब फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल पंजाब पुलिस और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी CCD के हुकाम ने बताया था कि सरगोदा शहर में 8 साला बच्ची के मुबैना रैप और कत्ल के मरकजी मुलजिम की पुलिस मुकाबले में हलाकत हो गई है। ख्याल रहे कि पुलिस ने 8 साला जहरा के मुबैना रैप और कत्ल के इल्ज़ाम में मरकजी मुलजिम समेत 5 अफराद को गिरफ्तार करने के बाद मज़ीद तफ्तीश की गर्ज से CCD के हवाले किया था। CCD हुकाम से मंसूब बयान में कहा गया कि CCD सरगोदा की टीम मुलजिम को बराए निशानदेही और बरामदगी आला कत्ल इलाका थाना झाल चकियां ले जा रही थी। उस दौरान मुलजमान ने CCD टीम को देखते ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस बयान में कहा गया कि मरकजी मुलजिम की पुलिस मुकाबले में हलाकत हो गई है। सरगोदा के थाना सिटी में इस वाक़े की FIR 8 साला मुंतहा ज़ोहरा के वालिद की मुद्दत में दर्ज की गई है। ये FIR कत्ल और बच्चों के साथ रैप से मुतल्लक दफात के तहत दर्ज की गई है। वालिद की जानिब से मरकजी मुलजिम समेत 4 अफराद को इस केस में नामजद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा सुहेब अशरफ ने GBC से बात करते हुए 5 नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। ताहम इस केस की FIR में दर्ज तफसीलात और पुलिस की जानिब से फराहम करदा तफसीलात में कुछ फर्क भी पाया गया है। हाल ही में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनने वाले इलॉन मस्क सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही इस दर्जे से महरूम हो गए हैं और इसकी वजह उनकी खलाई कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला के हिस्से की कीमत में मुसलसल कमी है। 12 जून को स्पेस एक्स की स्टॉक मार्केट में तारीखी लिस्टिंग के बाद इसके हिस्से की कीमतें आसमान को छूने लगी थी और एक मौके पर ये $225 फी शेयर तक पहुंच गई थी, जिसने इलॉन मस्क की मजमूई दौलत को $1.32 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया था। वाज़ेह रहे कि 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर होता है, लेकिन चंद रोज से मार्केट में करेक्शन के बाइस मंगल को उनकी मजमूई दौलत $957 अरब रह गई। 22 जून को एक ही दिन में स्पेस एक्स के हिस्से की कीमत में 16% कमी से इलॉन मस्क की मजमूई दौलत में $240 अरब की कमी आ गई, लेकिन वो अब भी दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। स्पेस एक्स में इलॉन मस्क की 42% मलकियत उन्हें कंपनी के मामलात पर तकरीबन मुकम्मल अख्तियार देती है।
इसी वजह से वो इससे हासिल होने वाली सरमायाकारी को अपनी तरजीहात के मुताबिक खर्च करने की पोजीशन में है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक स्पेस एक्स में शेयर्स की मालियत तिजारत बंद होने पर $767 अरब थी और उनके पास स्पेस एक्स के 53.8 अरब डॉलर के इजाफी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा टेस्ला में उनके हिस्से की मालियत $168 अरब और मजीद $116 अरब के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। Elon Musk is no longer a trillionaire. A sink in SpaceX stocks by 31% yesterday, along with a restriction on Musk's Tesla shares, brought his net worth back down to the multi-billions. हजारों साल पहले वादी सिंध की अजीम तहजीब के शहर मोहनजोदाड़ो से दरियाफ्त होने वाली एक छोटी सी कांसी की मूर्ति, जिसे दुनिया आज डांसिंग गर्ल के नाम से जानती है, सिर्फ एक आसारे कदीमा का नमूना नहीं बल्कि तारीख, शनाख्त और मलकियत के कई सवालात का मरकज भी है। 4,500 साल पुरानी ये मूर्ति आज इंडिया के नेशनल म्यूजियम में मौजूद है। हालांकि इसे मौजूदा पाकिस्तान की सरजमीन से दरियाफ्त किया गया था। तकसीम हिंद के बाद इसके हक के मलकियत पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़ा भी रहा, जबकि उसकी उरियानी और असल शनाख्त के हवाले से बहस आज भी जारी है। आखिर ये मूर्ति मोहनजोदाड़ो से दिल्ली तक कैसे पहुंची और इसके गिर्द मौजूद असरार क्या हैं? देखिए शकील अख्तर की ये खसूसी रिपोर्ट। मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल इन दिनों खबरों में है। सिंध वादी की तहजीब की 4,500 साल पुरानी ये मूर्ति हाल में उस वक्त ज़ेर बहस आई जब इंडिया के स्कूल बोर्ड ने निसाबी किताब में डांसिंग गर्ल की तस्वीर में उसके न्यूड या उरिया जिस्म को डार्क कलर से ढक दिया। आर्ट और हिस्ट्री के माहिरीन की तनकीद के बाद उसकी असल तस्वीर को तो बहाल कर दिया गया, लेकिन डांसिंग गर्ल की उरिया मूर्ति और अखलाकियात का सवाल कई अशरे पहले पाकिस्तान में भी उठा था, जब उसने इस मूर्ति को इंडिया से वापस लेने की कोशिश की थी। मोहनजोदाड़ो की डांसिंग गर्ल की ये छोटी सी मूर्ति तकरीबन 10 सेंटीमीटर की है। ये ब्रोंज की बनी हुई है। ये एक नौउम्र लड़की की मूर्ति है और वो कोई कपड़े नहीं पहने हुए है। उसने बाएं हाथ में बाजुओं तक कंगन पहन रखा है और दाहिना हाथ बहुत स्टाइल में मोड़कर पीछे की तरफ कूल्हे पर रखा हुआ है। उसके दोनों पैर घुटनों पर थोड़ा सा झुके हुए आगे की तरफ बढ़े हुए हैं। गालिबन उसके खड़े होने के अंदाज से ही आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने इसे डांसिंग गर्ल का नाम दिया था। लाहौर म्यूजियम के क्यूरेटर एहतशाम अजीज चौधरी के मुताबिक इस मूर्ति की अहमियत इसके आर्ट में पिना है। इसके पीछे कोई डिवीजन रेशो से ज़्यादा मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंस रही है वो इसकी आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा रही है। अगर डांसिंग गर्ल को आप देखें तो वो एक पूरे एक एक्ट करते हुए, एक परफॉर्म करते हुए, एक डांस का कोई पोज है उसको परफॉर्म करी है। डांस चूँकि एक रिलीजियस एक्टिविटी में भी आता है, हिंदुज़म में ख़ास तौर पे जितने भी आप देखते हो कि गॉडेसेस देखते हैं या डिटीज देखते हैं तो वो एक डांस परफॉर्म करना, एक्ट करना, कुछ परफॉर्म करना उनके सामने, ये डेफिनेटली उनके मजहबी अकायद का हिस्सा रहा है। डांसिंग गर्ल की ये मूर्ति इंडिया के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। मार्टिमर व्हीलर 1944 से 1948 तक इंडियन महकमा आसार कदीमा के सरबराह थे। वो आज़ादी से पहले मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के तकरीबन 12,000 आर्टिफैक्ट्स और नमूने नुमाइश के लिए लाहौर म्यूजियम से दिल्ली लाए थे। इंडिया के पार्टीशन के बाद मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा समेत अहम हड़प्पन साइट्स पाकिस्तान के हिस्से में आईं। इंडिया में हड़प्पन कल्चर की कुछ छोटी साइट्स ही रह गईं। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुर्रिख आशीष कुमार के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक पार्टीशन के वक्त सिंध वादी के ये सभी नवादरात यहीं दिल्ली में रह गए। चूँकि ये सभी नवादरात पाकिस्तान के खित्ते में दरियाफ्त हुए थे, इसलिए पाकिस्तानी हुक्काम ने इंडिया से उन्हें वापस करने का मुतालबा किया। 1950 के अशरे में मार्टिमर व्हीलर की मदद से सिंध वादी के आर्टिफैक्ट्स का आधा हिस्सा पाकिस्तान को देने का मुआहदा हुआ। पाकिस्तान प्रीस्ट किंग और डांसिंग गर्ल दोनों मूर्तियां वापस लेना चाहता था, लेकिन इंडिया ने इनमें से कोई एक मूर्ति देने से इत्तेफाक किया। बाद मौरखीन के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने यह सोचकर कि डांसिंग गर्ल की उरिया मूर्ति पर बाज़ हलकों की जानिब से तनाज़ा हो सकता है, प्रीस्ट किंग की मूर्ति लेने का फैसला किया। एक नौउम्र लड़की की मूर्ति के न्यूड होने ने उस वक्त हुक्काम के फैसले को मुतासर किया था, लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में 2016 में एक पटिशन दाखिल की गई, जिसमें अदालत से दरख्वास्त की गई कि वो पाकिस्तान हुकूमत को हिदायत जारी करे
कि वो ब्रोंज की बनी हुई डांसिंग गर्ल की मूर्ति इंडिया से वापस लाए। इस पिटीशन में कहा गया था कि चूंकि ये मूर्ति 1926 में मोहनजोदारो से दरियाफ्त हुई थी, इसलिए इस 5000 बरस पुरानी मूर्ति का असल वारिस पाकिस्तान है। इंडिया के बाद मुर्रिखीन ने उस वक्त इंडिया का ये कहकर दिफा किया था कि पाकिस्तान तनहा हड़प्पन तहजीब का वारिस नहीं है, ये तहजीब पूरे जनूबी एशिया का मुश्तरका वर्सा है। इन बहसों मुबाहिसों के दरमियान सिंध वादी की तहजीब की तरह ये डांसिंग गर्ल भी पुरस्कार बनी हुई है। ये कौन थी, इसे किसने तख्लीक किया था, ये किसकी नुमाइंदगी कर रही थी और क्या वो वाकई डांसिंग गर्ल थी, ये कोई नहीं जानता। शुमाली हिमालय के दामन में दरियाए चनाब के किनारे फैली चनाब वादी अपने अंदर फितरत के अनमोल खजानों और सदियों पुरानी तहजीब को समोए हुए है। नीलम, शलाजीत, कूची और नायाब जंगली जड़ी बूटियों से मालामाल ये खित्ता सिर्फ अपनी कुदरती दौलत ही नहीं बल्कि बुलंदो बाला पहाड़ों, रिवायती तर्ज जिंदगी और मुकामी लोगों की बेमिसाल मेहमान नवाजी के बाइस भी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। जीबीसी उर्दू की इस खसूसी पेशकश में कैसर अंद्राबी आपको ले चलते हैं इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर की इस हसीन वादी की सैर पर, जहां फितरत हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाती है। दरियाए चिनाब सिर्फ एक दरिया नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते की शिनाख्त है और इसी के नाम पर यह इलाका वादी चिनाब कहलाता है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर में आज का सफ़र है एक ऐसी कम जानी पहचानी जगह मगर बेहद खूबसूरत वादी चिनाब। इस वादी से बहता है दरियाई चिनाब जो हिमाचल प्रदेश में दो दरिया चदरा और भग्गा मिलकर इस वादी से रवां होता है। मैं कैसर अंद्राबी हूँ, BBC नामा निगार, और आज मैं आपको इस वादी में बसी मुख्तलिफ कहानियों से रूबरू कराऊंगा। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली शहरा से मशरक की तरफ मुड़े तो वादी चिनाब में दाखिल होते हैं। हम अभी इस वादी के पादर इलाके में जा रहे हैं। ये इलाका नीलम, गुच्ची और शिलाजीत जैसे कुदरती मादों के लिए जाना जाता है। आज हम देखेंगे शिलाजीत कैसे निकाला जाता है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं, लेकिन सरसब्ज पहाड़, दूध की तरह बहते झरने और ठंडी हवाएं इस सफ़र को नाकाबिल फरामोश बना देते हैं। हम यहाँ पे पाडर वैली के माऊ गांव में पहुँचे हैं और मेरे पीछे वो मनोहर लाल का घर है जो इस गांव में वाहिद शख्स है जो पहाड़ों पे जाके शिलाजीत का इस्तिखराज करते हैं। मनोहर लाल बरसों से शिलाजीत निकालते आ रहे हैं। आज वो तकरीबन 13,000 फुट की बुलंदी तक जाएंगे और हम यानी मैं और मनोहर लाल के साथी आदित्य इनके साथ रहेंगे। आप में तो वो थकान महसूस नहीं हो रही है, लेकिन हम तो ऑलमोस्ट थक गए। आपका क्या कहना है? मुश्किल ट्रैक रहते हैं, चलने में भी काफ़ी एनर्जी लगती है, बट एक बार पहुंच जाते हैं और जब आखिरी रिजल्ट पे हमारे को मकाम हासिल होता है तो बड़ा मजा आता है। पिछले 4 घंटे के ट्रैक के बाद जो हमने चढ़ाई की पहाड़ पे, तो उसके बाद मनोहर लाल ने कहा मैगी बनाते हैं। ये है असली पहाड़ों वाली मैगी। लगभग कितना होगा अभी? 2 किलोमीटर के आसपास। 2 किलोमीटर के आसपास फिर से ये पहाड़ चढ़ना है। आगे का रास्ता मनोहर लाल अकेले तय करेंगे। ये वो चट्टानें हैं जहां कदम जमाना आसान नहीं, न कोई हिफाजती सामान, न सहारे के लिए रस्सी।
सिर्फ तजुर्बा, तवाज़ुन और ख़तरा मोल लेने की हिम्मत। पहले जब थोड़े छोटे थे ना, तब थोड़े थोड़े चढ़ते 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 फिर डर खत्म हो गया, फिर कोई डर नहीं लगता। शिलाजीत पहाड़ों के द्राड़ू में बनता है। सदियों तक पौधों और दीगर कुदरती मादों के गलने सड़ने से वजूद में आने वाला ये सिया मादा मिनरल से भरपूर होता है और हमेशा भरपूर डिमांड में रहता है। बारह 12,000 फीट की ऊंचाई पे थे हम अभी, और तकरीबन 1,000 फीट हम नीचे आ गए हैं ढलान में। तो अभी नीचे और जाना है, मौसम खराब हो गया, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हमारी हालत अबतर है। कितना लाया अभी आपने? 2-3 किलो पत्थर लाया। पत्थर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, बनाना तो आसान है, लाना मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा बिल्कुल रिस्की काम होता है। अगर थोड़ा भी फिसल गया तो बस नाले में खत्म। खाई बड़ी बड़ी खाई होती है, चप्पल की तरह चलना सीख गए, आदत पड़ गया। अब यही बड़ा साल हो गए ना, तो पहाड़ी चढ़ने का थोड़ा तरीका बन गया है। कल जब आप इसको बनाएंगे सुबह तो प्योर जब ये हो जाएगा, उसके बाद जो थकान मुझे आ गई है आपके साथ पहाड़ चढ़ने में, खा सकते हैं आप भी। मैं भी खाऊंगा। उठ के पहले बहल करना पड़ता है, जब ये पिघल जाता है शिलाजीत ऊपर उठ जाता है, फिर गंद नीचे रह जाते, फिर उसको कपड़े में साफ सूफ करके तो फिर दोबारा बहल करके बनाते। 2 दिन की मेहनत के बाद ये शिलाजीत की बर्फी तैयार है। इसमें मेरा हिस्सा कितना है? सब आप ही का। मैं चलो चलिए फिर हम लेके चलते हैं इसको। इस वादी में 3 अहम शहर आते हैं, किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह। कदीम ज़मानों में ये इलाका नीम खुदमख्तार पहाड़ी रियासतों की हैसियत से मुख्तलिफ राजाओं की कंट्रोल में रहा, जबकि 19वीं सदी में ये जम्मू व कश्मीर में शामिल हो गया। पंजाबी लोक कहानी सोनी महिवाल में भी इस दरिया का जिक्र मिलता है। कहाँ जाओगे दोस्त? कहाँ? पाडर? कहाँ से आए? कठुआ से आए, कठुआ से। कठुआ से? हाँ जी। कितने दिनों से आप अभी सफर में हैं? 50 दिन से चल रहे हैं, अभी 10 दिन लगेंगे, 2 महीने लगभग हमारा जो होता है ये सफर जो कंटिन्यू होता है। क्या मुश्किलें आती हैं आपको इस सफर के दौरान? मुश्किलों की तो बात ही न मत करो सर। जैसे? अब जैसे आप आगे, आप अगर इज्जत दोगे तो ठीक है, हमको अच्छा लगेगा। आपको गाड़ी तो साइड करनी करनी, वो तो हमारे जिम्मेवारी, हमने करनी गाड़ी, हमारा माल चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ लोग आते हैं गाड़ी में, वो इस तरह से बदतमीजी करते हैं कि जिस तरह हमारा इस पे हक है ही नहीं रोड पे चलने का। अगर आप इनको गाड़ियों में एक बार वहीं पे डाल के, जैसे कठुआ से आए और यहाँ तक तो रोड है, तो एक बार गाड़ियों में 2-3 गाड़ियों में इतना माल आ जाएगा, तो वैसे क्यों नहीं भेजते हो आप? जी सर, हम चले थे 5 अप्रैल को, ठीक है। अगर 5 अप्रैल को वहाँ पे गर्मी हो गई थी, वहाँ पे हमारा जो रहने का बहुत मुश्किल हो गया था कठुआ में, ठीक है। अगर 5 अप्रैल को हम गाड़ी में माल को लोड करते, यहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलता। चिनाब दरिया के किनारे ये कहानी है, जो बकरवाल कम्युनिटी यहाँ से जाती है पहाड़ों में। ये उनके साथी है जो पहले ही आ चुके हैं और यहाँ पे उन्होंने अपना डेरा लगाया है। कितने दिन से आ रहे हो? 1 महीना हो गया। 1 महीने से चल रहे? हाँ, 1 महीने से। और आज क्या बन रहा है अभी? दाल चावल, चाय, फुल्का। और आप पैदल चलते रहते हो? हाँ, पैदल। थकते नहीं हो आप? थकता नहीं, उनके करा, थकते लगे। बीमार वगैरह कभी हो जाते हो? क्या करा, फिर रास्ता में हो जाए, कितने डॉक्टर मिले, कितने नहीं मिलता। कितने महीने ऊपर रहोगे आप पहाड़ों में? हम रहेंगे 3 महीने। 3 महीने? हाँ जी। तुम्हारा घर कहाँ? मेरा मैं रहता हूँ कश्मीर, श्रीनगर। हमारे बच्चे नीचे हैं बसोली में। बसोली में? स्कूल पाया हूँ। आप कभी गए हो स्कूल? ना। आप क्यों नहीं गए? छोटी थी, पहले पढ़ाई नहीं था, रखे थी। पकड़वाला ना पढ़ाई का?
बुकरवाल नहीं था, पढ़ाई पहले के पढ़ाई थी बुकरवाला ना, चले थे इसी तरह जंगला में। चाय कब बनेगी? है ना चाय बनी में, तो पी चलाइए। पिला भी नहीं सर। ये रही हमारी कश्मीर की नून चाय। नून चाय। और ये है कश्मीरी प्याला हमारा, है ना? ये जो पहाड़ों में हमें दूर से घर दिखते हैं तो अक्सर हमारे जहनों में ख्याल आता है कि ये लोग वहाँ पे कैसे जाते होंगे, रास्ता कैसा है उनका वहाँ पे। इसके पीछे कितना बड़ा गांव है? गांव तो है बहुत बड़ा। रास्ता नहीं बनाया है? नहीं, रास्ता नहीं बना। कितना आपको चल के जाना पड़ता है? ये कोई 20 मिनट का रास्ता है। 20 मिनट आप रोज चलते हैं? हाँ। ये बच्चे भी? हाँ जी। ज़बान व अदब, तहज़ीब व तमद्दुन और सकाफ़त के लिहाज से वादी चिनाब और वादी कश्मीर के दरमियान गहरा ताल्लुक़ है। यहाँ कश्मीरी, भद्रवी, गोजरी, कश्तवाड़ी और पहाड़ी ज़बानें बोली जाती हैं। कश्मीरी ज़ुबान बोलने वालों का दायरा यहाँ से लेकर हिमाचल प्रदेश के बाज़ इलाकों तक फैला हुआ है। हम इस वक्त वादी चिनाब के बदरवा इलाके में आए हैं, जिसे सगीर कश्मीर भी कहा जाता है। ये इलाका न सिर्फ अपनी सरसब्ज़ पहाड़ों से मशहूर है, बल्कि यहाँ की रिवायत और सकाफ़त के लिए भी जाना जाता है। हम इस वक्त रतनगढ़ के फोर्ट में हैं, जिसको सन 1733 में यहाँ के चंबा का जो राजा था, उन्होंने तामीर करवाया था। ये किला कभी मकामी हुक्मरानों की ताकत और दिफाई निज़ाम की अहम अलामत हुआ करता था। ये दीवारें अपने अंदर सकाफत के अलावा तारीख भी समेटे हुए हैं। सन 1919 में इस किले को एक जेल में तब्दील किया गया था और उस जेल में कश्मीर के पहले वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को इसी किले की दीवारों में कैद किया गया था। क्या खास बात है बदरवा में? अच्छी अच्छी जगहें हैं। यहाँ पर पदरी है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर फिश पॉन्ड है, अपना जाई एक है, बहुत अच्छी जगह है। मशहूर क्या है यहाँ का? जो राजमा होते हैं यहाँ की, वो भी स्पेशल है। और यहाँ पर एक केक बनता है आद खानी। लोक वर्षा, सूफी रिवायत, ज़ियारत गाहों, मजहबी रवादारी, सयाहत, जंगलात के सबब ये खित्ता अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त रखता है। तो हम रुक रहे हैं, लेकिन ये दरिया अपना सफ़र जारी रखेगा और चंद ही घंटों में पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल होने के बाद तेल की कीमतें एक बार फिर ईरान जंग से पहले वाली सतह पर आ गई हैं। आलमी मेयार ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत आर्जी तौर पर $72.48 फी बैरल तक गिर गई, जो 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों से एक दिन पहले की सतह थी। बाद असा ये मामूली इजाफे के साथ $72.63 फी बैरल तक पहुँच गई है।